ویری نیوزی کے ساتھ میں ہوں سمین نواز۔ آج ہم کچھ بات چیت کریں گے پاکستان کے گرے لسٹ میں رہنے کے حوالے سے۔ The Pakistan government has 2 concurrent action plans with a total of 34 action plan items. Pakistan has taken a number of important steps but needs to further demonstrate that investigations and prosecutions are being pursued against the senior leadership of UN designated terror groups. فائنینشیل ایکشن ٹاسک فورس نے ایک مرتبہ پھر پاکستان کو گرے لسٹ میں رکھنے کا جو مطالبہ کیا ہے یا جو اس کا انہوں نے باقاعدہ طور پر پریس کانفرنس کے ذریعے اعلان کیا ہے، تو اس پر جو 34 پوائنٹس کل بتائے جا رہے تھے جن میں سے 30 پر عمل درآمد کر سکا ہے پاکستان، جس کی وجہ سے اس کو گرے لسٹ سے باہر نہیں نکالا جا سکا ہے، اس کے بارے میں کوئی بات کریں گے۔ پاکستان بدستور FATF کے گرے لسٹ میں رہے گا۔ پاکستان کو سن 2018 میں گرے لسٹ میں ڈالا گیا تھا۔ FATF کے سن 2018 کا ایکشن پلان جو کہ دہشت گردوں کی مالی معاونت سے متعلق تھا، اس سلسلے میں پاکستان کو ان الزامات کی وجہ سے گرے لسٹ میں رکھا گیا تھا، کیونکہ پاکستان پر دہشت گردوں کی مالی معاونت کے کچھ الزامات تھے جس کی وجہ سے اس کو گرے لسٹ سے باہر نہیں نکالا جا سکا ہے۔ بات اگر کی جائے FATF کی تو پاکستان کو سن 2018 میں گرے لسٹ میں ڈالا گیا۔ FATF کے سن 2018 کا جو ایکشن پلان تھا، جس طرح ہم نے بات کی ہے دہشت گردوں کی مالی معاونت سے، اس کے متعلق اس کو رکھا گیا تھا۔ منی لانڈرنگ اور دہشت گردی کی مالی معاونت پر نظر رکھنے کے حوالے سے جو عالمی ادارہ ہے فائنینشیل ایکشن ٹاسک فورس، اس نے پاکستان کو اس مرتبہ بھی بدستور گرے لسٹ میں رکھنے کا فیصلہ کیا ہے۔ سن 2019 میں ترکی کے حوالے سے بھی کچھ ایسے ہی معاملات سامنے آئے ہیں جس کی وجہ سے اس کو گرے لسٹ میں اس مرتبہ ڈال دیا گیا ہے، اور 2019 میں ترکی کے بارے میں ایک جائزہ لیا گیا تھا جہاں منی لانڈرنگ اور دہشت گردی کی مالی معاونت کے سنگین مسائل کی نشاندہی سامنے آئی تھی، جس کی وجہ سے ترکی نے چند نکات میں تو کچھ بہتری دکھائی ہے لیکن مکمل طور پر وہ بھی پرفارمنس اپنی شو نہیں کر سکا ہے، لہٰذا یہ بھی اس وقت گرے لسٹ میں ہمیں نظر آتا ہے۔ اور منی لانڈرنگ اور دہشت گردی سے متعلق معاملات کو مؤثر انداز میں حل کرنے کی اس کو بھی ضرورت ہے۔ FATF کے 3 روزہ اجلاس جو کہ جاری تھا پیرس میں، اس کے بعد پریس کانفرنس میں ٹاسک فورس کے صدر ہیں ڈاکٹر مارکوس پلیئر، انہوں نے بریفنگ دیتے ہوئے بتایا ہے یا ایک پریس کانفرنس کے دوران اس بات کا اظہار کیا ہے کہ پاکستان نے جو 2 ایکشن پلانز تھے 34 آئٹم میں سے ان میں سے 30 پر عمل درآمد کر لیا ہے۔ Pakistan remains under increased monitoring. The Pakistan government has 2 concurrent action plans with a total of 34 action plan items. It has now addressed or largely addressed 30 of the items. Its most recent action plan from June this year, which largely focused on money laundering deficiencies, was issued after FATF's regional partner APG, the Asian Pacific Group, identified a number of serious issues. Overall, Pakistan is making good progress on this new action plan. 4 of the 7 action plan items are now addressed or largely addressed. This includes showing that financial supervisors are conducting on-site and off-site checks on non-financial sector businesses and enacting legislative amendments to improve international cooperation. Regarding its earlier action plan, which focused on terrorist financing issues and dates back to June 2018, Pakistan is still assessed to have largely addressed 26 out of 27 items. Pakistan has taken a number of important steps but needs to further demonstrate that investigations and prosecutions are being pursued against the senior leadership of UN designated terror groups. All these changes are about helping authorities prevent terrorism, stop corruption, and prevent organized criminals from profiting from their crimes. I thank the Pakistani government for their continued strong commitment to this process. اس وقت پاکستان کو دراصل ایک ساتھ عمل درآمد کے حوالے سے 2 ایکشن پلانز دیے گئے ہیں جس پر عمل درآمد ضروری ہے اور جس پر عمل کر کے ٹوٹل 34 پوائنٹس اس کے مکمل ہو جائیں گے۔ 34 نکات ہیں ان ایکشن پلانز کے، جس کے بعد پاکستان گرے لسٹ سے باہر آ جائے گا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پاکستان جو گرے لسٹ میں آیا تو کیسے آیا؟ پاکستان میں جو منی لانڈرنگ اور دہشت گردی کے لیے FATF کی جانب سے 40 سفارشات مرتب کی گئی تھیں، ان کے نفاذ کو انٹرنیشنل کارپوریشن ریویو گروپ نامی ایک ذیلی تنظیم دیکھتی ہے۔
नवंबर 2017 में इंटरनेशनल कॉरपोरेशन रिव्यू ग्रुप का इजलास अर्जेंटीना में हुआ था, जिसमें पाकिस्तान से मुताल्लिक़ एक करारदाद पास की गई, जिसमें पाकिस्तान की जानिब से लश्कर तैयबा, जैश मोहम्मद और जमात उद दावा जैसी तंजीमों को दी जाने वाली मुबैना हिमायत की तरफ तवज्जो दिलाई गई थी। इसके बाद अमरीका और बरतानिया की जानिब से पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में शामिल करने की सिफारिश की गई थी, जिसके बाद फ्रांस और जर्मनी ने भी इसकी हिमायत की थी। पाकिस्तान के उस वक्त के वज़ीर ख़ज़ाना मिफ्ताह इस्माइल ने अमरीका और उन तमाम तर दीगर ममालिक से जिन्होंने पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में डालने की सिफारिश की थी, दरख्वास्त की थी कि पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में ना डाला जाए, लेकिन सिफारती चूँकि हमारे ताल्लुकात खासे ख़राब हैं और हम यहाँ पर भी सिफारती मार खाते हुए नज़र आए, तो सिफारती कोशिशें तमाम तर रायगा गईं और जून 2018 को पाकिस्तान को FATF ने ग्रे लिस्ट में शामिल कर लिया था। इससे पहले भी पाकिस्तान सन 2013 से 2016 तक ग्रे लिस्ट का हिस्सा रह चुका है, जिसके बाद जो एक्शन प्लान्स दिए गए थे या जो नुकात दिए गए थे अमल दरामद के हवाले से FATF की जानिब से, उस पर अमल दरामद करके पाकिस्तान 2 साल के लिए 2016 के बाद इस ग्रे लिस्ट से बाहर आने में कामयाब हुआ, लेकिन 2018 में एक मरतबा फिर इस ग्रे लिस्ट में शामिल हो गया है। अब ग्रे लिस्ट में जो ममालिक होते हैं, दरअसल उनके क्या मसाइल हैं और क्या वजूहात हैं जिसकी वजह से वो ग्रे लिस्ट में नहीं रहना चाहते, तो इस पर थोड़ी सी हम बात कर लेते हैं कि ग्रे लिस्ट का जो हिस्सा होते हैं ममालिक, उसमें आलमी सतह पर मुख्तलिफ नौइयत की कुछ माशी पाबंदियाँ लग सकती हैं इन ममालिक पर, जबकि आलमी इदारों की जानिब से जो कर्ज़ों की फराहमी का सिलसिला है वो भी इस बुनियाद पर रोका जा सकता है कि ये मुल्क ग्रे लिस्ट में मौजूद है। अब इतने अरसे में पाकिस्तान ने ग्रे लिस्ट से निकलने के लिए क्या इक़दाम किए हैं, तो हम उस पर कुछ नज़र डालते हैं कि ग्रे लिस्ट से निकलने के लिए पाकिस्तान ने बहुत से मुश्तबा दहशतगर्दों और दहशतगर्दी में मुलव्वस अफराद की गिरफ्तारियाँ अमल में लेते हुए वो नज़र आए हैं, और इसी सिलसिले में 2019 के अप्रैल के महीने में कलअदम तंजीम जमात उद दावा से मुंसलिक तंजीमों और मुख्तलिफ अफराद को भी गिरफ़्तार किया गया है और उनको बाकायदा अदालतों में पेश किया गया है, जहां उनको सज़ाएं सुनाई गई हैं। जुलाई 2019 की अगर हम बात करें तो कलअदम तंजीम जमात उद दावा के जो सरबरा हाफिज़ सईद हैं उनको भी गिरफ़्तार किया गया था और फिर उन पर भी फ़र्द जुर्म आयद की गई और अब भी उन पर पाबंदियाँ बरकरार हैं। जबकि गुज़िश्ता साल नवंबर की अगर हम बात करें तो लाहौर के इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने हाफिज़ सईद को दहशतगर्दी की माली मुआवनत के इल्ज़ाम में 10.5 साल कैद की सज़ा सुनाते हुए उनके तमाम तर असासे जो हैं वो ज़ब्त कर लिए हैं। अब मौजूदा साल में क्या कोशिशें हुई हैं पाकिस्तानी हुकूमत की जानिब से ग्रे लिस्ट से बाहर निकलने के लिए, इस पर बात करते हैं। तो रवां बरस जनवरी में लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी की एक अदालत ने कलअदम तंजीम लश्कर तैयबा के कमांडर ज़कीउर रहमान लखवी इनको दहशतगर्दों की माली मुआवनत करने के जुर्म में 5 साल कैद और 3 लाख रुपए जुर्माने की सज़ा सुनाई थी। पाकिस्तान FATF की सिफारिशात पूरी करने और 27 जो इसकी तमाम तर टेरर फाइनेंसिंग की रोकथाम के लिए नुकात हैं उनमें से 15 पर कानून साजी भी कर चुका है। पाकिस्तान की जानिब से जून में मनी लॉन्ड्रिंग के खिलाफ जो इक़दाम किए गए थे, मजमूई तौर पर पाकिस्तान ने FATF के एक्शन प्लान से मुताल्लिक़ अच्छी पेशरफ्त का मुज़ाहिरा किया था, लेकिन ग्रे लिस्ट से बाहर आने के लिए अभी मज़ीद बेहतर कारकर्दगी दिखाने की ज़रूरत है। पाकिस्तान का दफ्तर ख़ारजा की जानिब से ये कहा गया है कि FATF की जानिब से पाकिस्तान को जो ग्रे लिस्ट में रखने का फ़ैसला है, दरअसल ऐसा लगता है कि ये दीगर ममालिक की एमा पर एक सियासी फ़ैसला किया गया है। क्या वाकई ऐसा है या नहीं, तो इस पर FATF के बारे में ये कहा जाता है कि जी ये एक टेक्निकल बॉडी है। FATF यानी कि फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स एक टेक्निकल बॉडी है और इसके तमाम तर फैसले इत्तेफाक राय से होते हैं और कोई भी मुल्क जो है वो इन फैसलों पर अपना अमल दरामद नहीं करवा सकता या दखल अंदाजी नहीं कर सकता, अपनी मर्ज़ी के फैसले नहीं करवा सकता इस टास्क फोर्स से। और ये जो हालिया फ़ैसला है पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में रखने का, ये भी एक ऐसा ही फ़ैसला है जो टेक्निकल बुनियादों पर किया गया है। FATF इस वक्त 39 जुरिस्डिक्शंस पर मुश्तमिल है और पाकिस्तान से मुताल्लिक़ फ़ैसले भी तमाम तर इत्तेफाक़ राय से किए जा रहे हैं। FATF के सदर का ये कहना है कि पाकिस्तान ने रवां साल जून में दिए गए एक्शन प्लान के 7 में से 4 एक्शन प्लान्स पर बड़े पैमाने पर पेशरफ्त की है, जिसमें माली मामलात की खास करके अंदरूनी और बैरूनी निगरानी, नॉन फाइनेंशियल सेक्टर बिजनेस, आलमी ताउन को फ़रोग़ देने के लिए कानून साजी जैसे इक़दाम शामिल हैं। अब अगर बात हम करते हैं पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान ने 2018 में जो 27 उनको पॉइंट्स दिए गए थे या नुकात बताए गए थे, जिनमें से 26 पर अमल दरामद यकीनी बनाने की सिफारिश की गई थी। इसमें 26 पर तो अमल दरामद हो गया, लेकिन एक अभी भी ऐसा है जिस पर अमल नहीं हो सका है। तो ये बड़े पैमाने पर पेशरफ्त जो है वो देखी जा रही है कि पाकिस्तान ने एक बड़ा स्कोर ज़रूर हासिल किया, लेकिन
उतना स्कोर हम नहीं कर सके हैं जितने इस वक्त मतलूबा डिमांड है FATF की। पाकिस्तान ने चंद अहम इक़दाम किए हैं, लेकिन पाकिस्तान को अब भी अक़वाम मुत्तहिदा की जानिब से दहशतगर्द करार दिए गए ग्रुप्स के सरकर्दा अफराद के ख़िलाफ़ तहक़ीक़ात और तमाम तर अदालती कार्रवाइयाँ करने की जो अहकामात हैं, जो इंस्ट्रक्शंस हैं, उसको फॉलो करना ज़रूरी है। फिर हम शायद एक मरतबा फिर ग्रे लिस्ट से बाहर आ सकेंगे। और ये तमाम तर जो इक़दामात हैं या जो तमाम तर कार्रवाइयाँ हैं, इनका मकसद ये है कि जो करप्शन इस वक्त मुल्क में जारी है या जो मुनज़्ज़म जराइम का एक सिलसिला, एक मजबूत नेटवर्क मौजूद है, उसको जो है वो मज़ीद मुस्तफ़ीद होने से रोका जा सके, उसको मज़ीद फ़ायदा उठाने से रोका जा सके। और पाकिस्तान की हुकूमत को इस सिलसिले में करना ये चाहिए कि इस अमल से मुताल्लिक़ अपनी जो मजबूत कमिटमेंट है FATF के हवाले से, उस पर अमल दरामद करे। और इससे पहले जो फरवरी 2021 में FATF के हवाले से होने वाले इजलास में पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में रखने का फ़ैसला किया गया था और पाकिस्तान को उस लिस्ट से निकालने के लिए जिन नुकात पर अमल करने की हिदायत की गई थी, उस पर तमाम तर अमल दरामद यकीनी बनाए, ताकि पाकिस्तान जिस तरह माजी में एक मरतबा ग्रे लिस्ट से बाहर आ चुका है और तमाम तर माशी पाबंदियाँ उस पर से ख़त्म हो चुकी थी, या तमाम तर जो उसको कर्ज़े मिलने के हवाले से कुछ मुश्किलात थी आलमी इदारों की जानिब से, उसमें भी खासी बेहतरी देखी जा रही थी, या एक GSP+ का जो स्टेटस पाकिस्तान को मिला था, वो एक बड़ा बेनिफिट था ग्रे लिस्ट से बाहर आने का। तो अगर अब हम मौजूदा नुकात पर अमल दरामद कर लें, या जो हालिया एक्शन प्लान्स दिए गए हैं FATF की जानिब से पाकिस्तानी हुकूमत को, उस पर अमल दरामद यकीनी बनाएं, तो यकीनन एक मरतबा फिर पाकिस्तान ग्रे लिस्ट से बाहर आ जाएगा और हुकूमत पाकिस्तान की कुछ मुश्किलात कम हो सकेंगी। The Pakistan government has 2 concurrent action plans with a total of 34 action plan items. Pakistan has taken a number of important steps but needs to further demonstrate that investigations and prosecutions are being pursued against the senior leadership of UN designated terror groups.